کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم مارک کارنی نے ملک میں قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا، جس کے تحت 28 اپریل کو عوام نئے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ یہ فیصلہ ملک میں سیاسی استحکام اور اپنی حکومت کو مضبوط مینڈیٹ دینے کے لیے کیا گیا۔ مارک کارنی نے گورنر جنرل سے پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی درخواست کی۔ پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی ڈرا اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی۔ جیسے ہی ان کی ڈرا اندازی کی کوشش کا پتہ چلا، فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں خوشگوار موسم کا سلسلہ جاری ہے، تاہم درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت صوبے کے کئی شہروں میں دن کے اوقات میں دھوپ کی شدت بڑھنے لگی ہے، جبکہ رات کے وقت بھی ٹھنڈک میں کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث شہریوں نے رات کے وقت بھی پنکھے اور اے سی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا اور گرمی کا اثر زیادہ محسوس کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جیل میں ملاقاتوں کے حوالوں سے درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ہفتے میں 2 دن منگل اور جمعرات کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ تاہم عدالت نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ عمران خان کے کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ جو نام دیں گے، صرف وہی افراد ملاقات کے اہل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صبح سویرے بغیر کسی سرکاری پروٹوکول کے لاہور شہر کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور مختلف علاقوں میں صفائی کی صورتحال اور فیلڈ اسپتال میں دستیاب طبی سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے اقدامات کا معائنہ کیا۔ Summers میں nothing like a good swim, splashing water and getting refreshed. لیکن اگر اس سے زیادہ کچھ ریفریشنگ ہے تو obviously that's 7 Up. 7 Up کا real lemon lime flavor they refreshing feel. Feels so good. Let's go and watch our next program. یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاک افغان سرحد کے قریب شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی ڈرا اندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی۔ جیسے ہی ان کی ڈرا اندازی کی کوشش کا پتہ چلا، فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق 22 اور 23 مارچ کی درمیانی شب دہشت گردوں کے ایک گروہ نے افغانستان کی جانب سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، جسے سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں تمام 16 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہ دہشت گرد پاکستان میں تحریبی کارروائیاں کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تاہم پاک فوج نے ان کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان مسلسل عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی جانب سرحدی نگرانی کے مؤثر انتظامات یقینی بنائے اور دہشت گرد عناصر کو پاکستانی سرزمین کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ ISPR نے واضح کیا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہر قیمت پر تیار ہیں اور دہشت گردی کی مکمل خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ پاک فوج کسی بھی اندرونی یا بیرونی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس ہے۔ اس کامیاب آپریشن پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک کی سلامتی کے لیے جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ قابل قدر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور ریاست اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ ان کا قلعہ کما کرے گی۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مکمل یکجہتی کا مظاہرہ کرے گی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں خوشگوار موسم کا سلسلہ جاری ہے، تاہم درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور سمیت صوبے کے کئی شہروں میں دن کے اوقات میں دھوپ کی شدت بڑھنے لگی ہے، جبکہ رات کے وقت بھی ٹھنڈک میں کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث شہریوں نے رات کے وقت بھی پنکھے اور اے سی کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہوگا اور گرمی کا اثر زیادہ محسوس کیا جائے گا۔ اس وقت پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسم خشک ہے اور اگلی
चंद रोज तक बारिश के इम्कानात नहीं हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मौसम की ये सूरत हाल बरकरार रही तो अप्रैल के आगाज में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और शहरियों को शदीद मौसम के लिए तैयार रहना होगा। लाहौर में दर्जा हरारत में वाज़ह तब्दीली देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में धूप की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और दोपहर के वक्त गर्मी का एहसास मजीद बढ़ जाता है। शहरियों का कहना है कि मार्च के वक्त में ही गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी है और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले महीनों में शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब मौसमी माहिरीन का कहना है कि रवां साल मौसम गर्मा जल्दी शुरू होने के इम्कानात हैं और अप्रैल के वस्त तक दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा हो सकता है जिसकी वजह से मौसमियाती तब्दीलियां और दीगर माहौलियाती अवामिल हैं। माहिरीन ने शहरियों को हिदायत की है कि वो दिन के औकात ज्यादा देर धूप में न रहें और गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरियों ने मौसम की अचानक तब्दीली पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ लोग खुशगवार मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं जबकि कुछ को गर्मी की शिद्दत बढ़ने की फिक्र लाहक हो गई है। बाजारों में भी गर्मी से बचाव के लिए मशरूबात और ठंडी अशिया की खरीदारी में इजाफा देखा जा रहा है जबकि दोपहर के औकात में सड़कों पर रश भी मामूल से कम नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले चंद रोज तक मौसम खुश्क रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे की तवक्का है। शहरियों को चाहिए कि वो ज्यादा गर्मी में गैर जरूरी बाहर निकलने से गुरेज करें और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जेल में मुलाकातों के हवालों से दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए हफ्ते में 2 दिन मंगल और जुमेरात को मुलाकात की इजाजत दे दी। ताहम अदालत ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने ये भी वाज़ह किया कि इमरान खान के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही अफराद मुलाकात के अहल होंगे। हाई कोर्ट में जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच ने समाअत की जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आजम शामिल थे। दौरान समाअत अदालत ने कहा कि जो भी बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करेगा वो मुलाकात के बाद किसी भी किस्म की मीडिया टॉक नहीं करेगा ताकि जेल में होने वाली बातचीत को अवामी सतह पर न लाया जाए। अदालत ने मजीद हिदायत की कि अगर इमरान खान के अपने बच्चों से मुलाकात करवानी है तो इसके लिए मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जाए। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब बानी पीटीआई की कानूनी टीम और इनके करीबी साथी मुसलसल जेल में मुलाकातों पर आयत पाबंदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और अदालत से रुजू किया था। इस फैसले के बाद अब इमरान खान के वकला और करीबी साथी हफ्ते में 2 रोज इनसे मुलाकात कर सकेंगे। ताहम मीडिया से गुफ्तगू पर आयत पाबंदी के बाद मुलाकातों की तफसीलात अवामी सतह पर शेयर नहीं की जा सकेंगी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस अदालती फैसले से एक तरफ जहां इमरान खान के हामियों को इनसे मुलाकात का मौका मिलेगा वहीं दूसरी जानिब मीडिया पर जेल में होने वाली गुफ्तगू के अफशा होने को रोका जा सकेगा। इससे कबल तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने इनके बयानात और हिकमत अमली पर तबसरा करते रहे हैं जिसकी वजह से हुकूमत और अदालती हलकों की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी टीम और पार्टी रहनुमाओं को अब मंगल और जुमेरात को मुलाकात की सहूलियत मुयस्सर होंगी लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की जानिब से इस फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है। इनका मौक़िफ़ है कि इमरान खान को हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा मुलाकातों की इजाजत दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमती हलके इस अदालती फैसले को कानून की अमलदारी के लिए मुस्बत करार दे रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से जेल के अंदर और बाहर की सूरत हाल पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इमरान खान की मुलाकातों के बाद इनके बयानात और सियासी हिकमत अमली अक्सर खबरों में जगह बना लेते थे लेकिन अब मीडिया टॉक पर पाबंदी के बाद ये सिलसिला रुक सकता है। आंखें क्यों ये तरसे मन में जो है कह दे तू हाले दिल कोई ना जाने एहसास ज्यादा है तुझ में हाथ हाथों में थाम ले यारा मेरे आओ बादलों मजा
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुबह सवेरे बगैर किसी सरकारी प्रोटोकॉल के लाहौर शहर का गैर एलानिया दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल और फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिब्बी सहूलतों का तफसीली जायजा लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के इक़दाम का मुआयना किया। वो मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों में गयी और मौका पर मौजूद सफाई अमले से भी मालूमात हासिल की। इन्होंने सड़कों पर सफाई की सूरत हाल का बराह रास्त मुशाहिदा करते हुए मुतल्लिका हुकाम को मजीद बेहतरी की हदायत दी। इस अचानक दौरे के दौरान वजीर आला ने हरबंसपुरा में कायम फील्ड अस्पताल का भी दौरा किया, जहाँ इन्होंने अस्पताल में मौजूद तिब्बी सहूलियात का मुआयना किया। मरियम नवाज शरीफ ने अस्पताल में दस्तयाब अद्वियात के स्टॉक और म्यार का भी जायजा लिया और इस हवाले से अमले से तफसीली बातचीत की। वजीर आला ने अस्पताल में जेर इलाज मरीजों से मुलाकात की और इनसे तिब्बी सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। मरीजों ने अपने मसाइल से आगाह किया, जिस पर वजीर आला ने फौरी इक़दाम की यकीन दहानी करवाई। इन्होंने अस्पताल इंतजामिया को हदायत की कि मरीजों को मेयारी सहूलियत फराहम की जाए और किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरे के दौरान मरियम नवाज शरीफ ने मुतल्लिका इदारों को भी हदायत जारी की कि लाहौर समेत पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं और अस्पताल में मरीजों को हर मुमकिन सहूलियत फराहम की जाए। कनाडा के नामुंतखब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया, जिसके तहत 28 अप्रैल को अवाम नए नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। ये फैसला मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और अपनी हुकूमत को मजबूत मैंडेट देने के लिए किया गया। मार्क कार्नी ने गवर्नर जनरल से पार्लियामेंट तहलील करने की दरख्वास्त की और इंतखाबी मुहिम के आगाज का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस इंतखाब में लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है, जिसमें 334 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। दोनों जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम की तैयारियों में मसरूफ हैं और अवाम को अपने हक में मुतहरिक करने की कोशिश कर रही हैं। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये इंतखाबात कनाडा के सियासी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे। मार्क कार्नी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतवस्सित तबके के लिए टैक्स में कमी का इंदिया दिया और अवाम को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। इन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप की पॉलिसियां कनाडा की मईशत को नुकसान पहुंचा रही हैं। इनके मुताबिक अमेरिका की जानिब से गैर मुनसिफाना टैरिफ और तिजारती इक़दाम की वजह से कनाडा को शदीद इक़्तिसादी दबाव का सामना है। ताहम वो अपनी पॉलिसियों के जरिए मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए पुरज़्म है। वाज़ेह रही कि 14 मार्च को मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर हल्फ उठाया था। इनके हल्फ उठाने के साथ ही जस्टिन ट्रूडो का तकरीबन 10 साल इक़्तिदार खत्म हो गया। जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और अमेरिका के साथ तिजारती तनाज़ात के बाइस दबाव की वजह से वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। इनके मुस्ताफ़ी होने के बाद लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को नया रहनुमा मुंतखब किया और अब वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा कर अपनी हुकूमत को अवामी हमायत से मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि ये इंतखाबात कनाडा के लिए फैसला कुन साबित होंगे, क्योंकि अवाम को ये फैसला करना होगा कि वो लिबरल पार्टी के रहनुमा मार्क कार्नी को मौका देना चाहते हैं या कंजर्वेटिव पार्टी को इक़्तिदार सौंपना चाहते हैं। इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है और आने वाले दिनों में सियासी दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है।